Hello students, hope all of you are well. So today I will start with another topic, that is the inverse of a function or a inverse of a mapping. So in my previous topic I have discussed about the definitions of a functions, injective, surjectiveness and bijectiveness of a function, and some problems and properties. So after that, in our syllabus we have to learn about the inverse of a function. Before we start, I want to say that still those who haven't subscribed this channel, subscribe the channel now. Okay, so let us start with the lecture. So to understand inverse of a function, we have to go through some basic theorems. The theorem number 1 says that if f a to b, g b to c be both injective functions, then g compose f a to c is also an injective function. Okay, अगर f a to b g b to c दोनों ही इंजेक्टिव होता है तो उसका जो कंपोजिशन है g कंपोज f वो भी क्या होगा, इंजेक्टिव ही होगा. तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं? सो वी आर कंसिडरिंग टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेट कैपिटल A. Now if you recall the definition of the injective mapping, then we know that distinct elements has distinct images, then such type of mapping is known as an injective mapping. Or we can say that if elements are same, then the images must be same. That is also injective mapping. Okay, so we are considering two distinct elements from the set capital A. Since f is injective, so after taking the mapping f of x1 equals to y1 and f of x2 equals to y2, this y1 y2 will belongs to capital B. Since f is injective, so y1 y2 becomes distinct elements of B. Similarly, we can send y1 y2 to some element of capital C with the help of G. So G of y1 equal to z1 and G of y2 equal to z2. Now G is also injective, therefore z1 z2, these two images must be distinct. डेफिनेशन ऑफ द इंजेक्टिव मैपिंग. तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो जी कंपोज एफ ऑफ x1 का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ x1, दैट इज जी ऑफ y1 इक्वल टू z1, एंड जी कंपोज एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ x2 जी ऑफ y2 इक्वल टू z2. तो हम लोग को पता चल रहा है यहाँ से कि x1 z1 दे रहा है और x2 z2 दे रहा है अंडर द कंपोजिशन जी कंपोज एफ. ठीक है, अभी x1 x2 दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है कैपिटल A का और z1 z2 दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है कैपिटल C का. तो बाय दिस प्रोसेस व्हाट वी कैन सी, दैट इज x1 x2 आर डिफरेंट एलिमेंट दैट वी हैव चोजन एंड वी ऑब्टेन z1 z2 आर आल्सो डिफरेंट, and also z1 z2 equals to what, z1 z2 is nothing but g compose f of x1 and g compose f of x2. so हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x1 x2 अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो अंडर द कंपोजिशन g compose f of x1 g compose f of x2 also different. So distinct elements have distinct images under the mapping G compose F. So that is G compose F must be injective. Okay. Now to understand it very well, the converse of this theorem is not necessarily true. What is the converse? That is, if G compose F is injective, then it is not guaranteed that both F and G will be injective. It may be guaranteed that F must be injective but G need not be. So let us think about this problem or this definitions also, theorem also, by a suitable example. So we are considering a function f real number to real number by fx equals to e to the power x. तो अगर x1 x2 डिफरेंट होगा तो e to the power x1 e to the power x2 भी डिफरेंट होता है, तो f of x1 f of x2 भी डिफरेंट ही होगा. तो इसका मतलब ये है कि x1 x2 डिफरेंट होने के लिए f of x1 f of x2 डिफरेंट हो रहा है. That is, f becomes an injective function and g R2 are defined by gx equals to x square. तो पिछले क्लास में मैंने किया हुआ है, ये प्रॉब्लम इंजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि -1 होल स्क्वायर एंड +1 होल स्क्वायर गिव्स अस द सेम रिजल्ट. तो g तो इंजेक्टिव नहीं है. लेकिन देखो हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ से, g कंपोज f R2R is equals to g कंपोज f of x equals to g of fx, that is g of e to the power x and that is equals to e to the power x whole square, that is e to the power 2x. तो अगर x1 x2 डिफरेंट है तो 2x1 2x2 भी डिफरेंट होगा और e to the power 2x1 e to the power 2x2 भी डिफरेंट होगा. That means g compose f becomes injective, whereas f is also injective but g is not injective.
तो अगर जी कंपोज एफ इंजेक्टिव है, वहां से हम लोग गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि एफ इंजेक्टिव होगा ही होगा, लेकिन जी के ऊपर उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी इंजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? सो लेट अस गो टू द थ्योरम 2। वेरी इजी थ्योरम, सेम टाइप ऑफ थ्योरम फॉर इंजेक्टिव, हियर वी हैव टू डू फॉर द सर्जेक्टिव। तो अगर एफ और जी दोनों सर्जेक्टिव मैपिंग है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? सर्जेक्टिव होगा। यहाँ पे मैंने एक गलती किया हुआ है, आर टू आर लिख दिया है मैंने, इसको ठीक से कर लो, कॉपी पे ए टू सी होगा। ठीक है, ये होगा ए टू सी, क्योंकि ए टू बी है, बी टू सी है, मैंने गलती से यहाँ पे आर टू आर लिख दिया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोडोमेन से एलिमेंट चूज करते हैं। तो जी का कोडोमेन है सी, ठीक है, और जी कंपोज एफ क्या होगा? ए टू सी होगा। ए टू सी अगर होता है तो सी है हमारा कोडोमेन, तो सी से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करते हैं, वो है जेड। अभी जी तो सर्जेक्टिव है, तो सी जेड का एक प्री इमेज मिलेगा कहाँ पे? बी पे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्जेक्टिव मैपिंग, दैट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन। तो जी का कोडोमेन है सी और जी का डोमेन है बी। तो सी से अगर कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं, उसका प्री इमेज कहाँ पे मिलता है? बी पे मिलता है, बिकॉज जी इज सर्जेक्टिव। तो वो प्री इमेज को हम लोग पकड़ते हैं y, तो g ऑफ y इक्वल टू z। फिर से y तो b का एलिमेंट है और f क्या है? सर्जेक्टिव है, तो y का फिर से एक प्री इमेज मिलेगा। y का प्री इमेज क्या होगा? x होगा, और x कहाँ पे रहेगा? a पे रहेगा, जो f का डोमेन है। ठीक है, तो हम लोगों को जी कंपोज एफ से क्या मिलता है? जी कंपोज एफ से मिलता है z। तो जी कंपोज एफ ऑफ x इक्वल टू अगर z होता है तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि z का एक प्री इमेज है x अंडर द मैपिंग जी कंपोज एफ। जी कंपोज एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं तो z मिल रहा है, तो इसका मतलब z का प्री इमेज है x अंडर द मैपिंग जी कंपोज एफ। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग c से चूज करते हैं जो है जी कंपोज एफ का कोडोमेन, दैट एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ जी कंपोज एफ, दैट इज a। सो जी कंपोज एफ बिकम्स सर्जेक्टिव मैपिंग। यहाँ पे भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। यहाँ पे कन्वर्स क्या मतलब है? जी कंपोज एफ अगर सर्जेक्टिव होगा तो जी तो सर्जेक्टिव होगा ही होगा, लेकिन एफ के ऊपर उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एफ सर्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको सोच लेते हैं। समझ लो एफ एक फंक्शन है z टू z एंड इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो अभी अगर 1 2 3 5 ऐसा करके ऑड इंटीजर्स को हम लोग चूज करते हैं तो उसका प्री इमेज क्या होगा? 1/2 होगा, 3/2 होगा, 5/2 होगा, लेकिन वो तो इंटीजर नहीं है, वो तो z के अंदर नहीं होगा। तो इसका मतलब f फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर gx को हम लोग सोचते हैं बॉक्स ऑफ x/2, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, बॉक्स ऑफ x। सो बॉक्स ऑफ x/2 का प्री इमेज होता है 2x। तो कोई भी एक इंटीजर ले लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो कोई भी इंटीजर का प्री इमेज कहाँ पे रहता है? z पे रहता है। ठीक है ना, कोई भी इंटीजर अगर तुम चूज करते हो, यहाँ पे समझ चूज किया तुमने हाफ, तो 1 अगर चूज करते हो तो 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। तो 0.5 तो उसका वैल्यू क्या आएगा? बॉक्स वैल्यू 0 होगा, प्री इमेज मिल गया। क्लियर? अच्छा, तो जी कंपोज एफ क्या निकला यहाँ से? जी कंपोज एफ निकल रहा है बॉक्स ऑफ एक्स। अब अगर z टू z कोई मैपिंग है, z टू z कोई मैपिंग है और वो है फंक्शन बॉक्स एक्स, तो z टू z मैपिंग अगर बॉक्स एक्स है तो उसमें बॉक्स एक्स का वैल्यू और इंटीजर का वैल्यू डिफरेंट नहीं होता है। समझ लो बॉक्स ऑफ -1 क्या होगा? -1 होगा। बॉक्स ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है। बॉक्स ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज वो खुद एलिमेंट ही हो जाएगा। तो इसका मतलब जी कंपोज एफ भी सर्जेक्टिव हो रहा है, हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एफ सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो जी कंपोज एफ अगर सर्जेक्टिव होगा, एफ नीड नॉट बी सर्जेक्टिव बट जी मस्ट बी सर्जेक्टिव। तो ये दोनों थ्योरम को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? देखो, अगर एफ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, जी अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, तो इसका मतलब एफ भी बाइजेक्टिव है, जी भी बाइजेक्टिव है, देन जी कंपोज एफ विल बी ऑल्सो बाइजेक्टिव मैपिंग। लेकिन अगर जी कंपोज एफ बाइजेक्टिव दिया हुआ है तो वहां से क्या मिलेगा? जी कंपोज एफ अगर बाइजेक्टिव है तो वहां से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं एफ तो इंजेक्टिव होगा ही होगा और जी तो सर्जेक्टिव होगा ही होगा। लेकिन इसके ज्यादा और हम लोग कुछ नहीं डिराइव कर सकते हैं आप विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ द मैपिंग। क्लियर?
नाउ लेट अस गो टू द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स, जिसके लिए ये वीडियो लेक्चर है। तो इनवर्स किसको कहते हैं? देखो, एक मैपिंग है एफ ए टू बी, दिस मैपिंग इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, और the existence of the inverse of this mapping if we can find out another mapping GB to A such that G compose F equals to IA and F compose G equals to IB। F A से B पे ले जा रहा है और G क्या करेगा, B से A पे बैक करेगा, और जब हम लोग कंपोजिशन लेंगे G compose F, वो हो जाएगा आइडेंटिटी मैपिंग ऑन A सेट, एंड F compose G होगा आइडेंटिटी मैपिंग ऑन B सेट। आइडेंटिटी मैपिंग के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको जाके वहां से चेक कर लो। तो IA IB दोनों आइडेंटिटी मैपिंग है A और B सेट के ऊपर। अभी G कंपोज F अगर IA हो रहा है तो हम लोग कहेंगे G F का लेफ्ट इनवर्स है, क्योंकि G F के लेफ्ट साइड पे है। तो और F कंपोज G अगर IB हो रहा है तो G F के राइट साइड पे है, तो G को हम लोग कहेंगे राइट इनवर्स ऑफ F। ठीक है, अभी एक मैपिंग जब लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट होता है कब होता है? अगर F इंजेक्टिव है तभी जाके लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अगर F सर्जेक्टिव है तभी जाके उसका राइट इनवर्स एग्जिस्ट होता है। सो व्हेनेवर द लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स बोथ आर इक्वल, देन ओनली वी कैन से द इनवर्स ऑफ ए मैपिंग एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। समझ लो हमारे पास एक मैपिंग है G F मैपिंग है, और हम लोग को एक मैपिंग मिल रहा है G सच दैट G कंपोज F इक्वल टू IA हो रहा है, लेकिन F कंपोज G आइडेंटिटी मैपिंग नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है G ओनली लेफ्ट इनवर्स बट G इज नॉट द राइट इनवर्स। तो अगर G राइट इनवर्स नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते कि F मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए बोथ लेफ्ट आइडेंटिटी मैंने लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स शुड बी इक्वल। क्लियर? and generally we denote A inverse by F to the power -1, that is the inverse। तो कैसे हम लोग सोचे कि एक मैपिंग इन्वर्टेबल है और उसका फॉर्मूला कैसे निकाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग को एक थ्योरम जानना जरूरी है, दैट द थ्योरम इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू इन्वर्टेबिलिटी ऑफ ए मैपिंग। तो एक मैपिंग का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर कोई भी मैपिंग बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स रहेगा, अगर इन्वर्स रहता है तो इसका मतलब ये फंक्शन खुद ब खुद बाइजेक्टिव है। तो पहला पार्ट में हम लोग पकड़ लेते हैं कि F इन्वर्टेबल है। ठीक है ना, तो इफ F इज इन्वर्टेबल देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स वी कैन हैव अनदर मैपिंग GB to A such that G compose F equal to IA and F compose G equal to IB। अभी आइडेंटिटी मैपिंग क्या है? आइडेंटिटी मैपिंग है IA x equals to x, x को x पे भेज रहा है। तो एवरी आइडेंटिटी मैपिंग इज नथिंग बट इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। ठीक है ना, एवरी आइडेंटिटी मैपिंग इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। तो F G कंपोज F इक्वल्स टू IA, IA तो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव भी है, तो IA को हम लोग इंजेक्टिव लिख सकते हैं। अगर IA इंजेक्टिव है तो इसका मतलब G कंपोज F इंजेक्टिव हो गया। अगर G कंपोज F इंजेक्टिव है तो F क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव होना ही चाहिए। पिछले वाले थ्योरम का नोट में मैंने यही बताया तुम लोगों को कि G कंपोज F अगर इंजेक्टिव होगा तो F मस्ट बी इंजेक्टिव। तो यहां से हम लोग डिराइव कर सकते हैं F इंजेक्टिव है। अगर F कंपोज G इक्वल टू IB है तो IB क्या है? फिर से ये IB को इंजेक्टिव भी ले सकते हैं, सर्जेक्टिव भी ले सकते हैं। तो पकड़ लेते हैं IB सर्जेक्टिव है। तो अगर IB सर्जेक्टिव है तो इसका मतलब F कंपोज G सर्जेक्टिव है। तो अभी जाके प्रीवियस नोट पे देखो, अगर G कंपोज F सर्जेक्टिव होता है तो G सर्जेक्टिव होता है। इसका मतलब जो दोनों मैपिंग है वो अगर सर्जेक्टिव, उसका कंपोजिशन अगर सर्जेक्टिव होगा तो पहला वाला जो मैपिंग होता है वो सर्जेक्टिव होता है। G कंपोज F अगर सर्जेक्टिव होता है तो G सर्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है F कंपोज G। तो F कंपोज G अगर सर्जेक्टिव होगा तो पहले कौन है? F है, तो F मस्ट बी सर्जेक्टिव। तो F इंजेक्टिव भी है, F सर्जेक्टिव भी है, तो F क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। आसानी से प्रूफ हो गया। अभी कन्वर्सली उसको सोचते हैं। अगर कन्वर्सली पकड़ते हैं कि F बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो F अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब F इंजेक्टिव भी होगा, F सर्जेक्टिव भी होगा। तो F अगर इंजेक्टिव है तो इट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, and F is surjective, that means every element in the codomain has a pre-image. So let us consider any arbitrary element x from A,
एंड f ऑफ x विल गोज टू b। क्लियर? अंडर द मैपिंग f x, यहाँ पे f के ऊपर डिपेंड करके f ऑफ x कहाँ पे चला जाएगा, b पे चला जाएगा। तो हम लोग लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को इनवर्स चेक करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, b से a पे एक मैपिंग खुद से बना रहे हैं, ठीक है। ये मैपिंग हम लोग खुद से बना रहे हैं। तो g b to a, दिस मैपिंग इज डन बाय अस। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस मैपिंग? g ऑफ y विल बी इक्वल टू x। जो y हमको यहाँ पे मिला है, x का जो इमेज है वही y को हम लोग बैक करके ले आएंगे, कहाँ पे, x पे लेके आएंगे, ठीक है ना। ये हो है प्रोसेस इनवर्स ढूंढने के लिए। तो g ऑफ y को x पे बैक करेंगे, सो g ऑफ y इक्वल टू x। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलता है, देखो। सो g कंपोज f ऑफ x क्या होगा, g ऑफ f x। f x का मतलब है y, g ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, x। तो x कहां पे मैप हो गया, x पे मैप हो गया। x कहां पे है, a पे है। तो i a x हो सकता है, क्योंकि i a क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग ऑन a सेट। तो i a x क्या होगा, x होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि g कंपोज f क्या हो रहा है, i a हो रहा है। सिमिलरली f कंपोज g क्या होगा, i b होगा। तो g कंपोज f इक्वल्स टू i a, f कंपोज g इक्वल्स टू i b, दैट मीन्स द मैपिंग इज इनवर्टेबल। अभी दोनों इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। अगर कोई भी मैपिंग इन्वर्टेबल होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो वो मैपिंग भी खुद ब खुद बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इफ f इज इन्वर्टेबल देन f इनवर्स एग्जिस्ट एंड ऑल्सो f इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अगर f इनवर्स बाइजेक्टिव हो गया तो उसका भी इनवर्स रहेगा, दैट मीन्स f इनवर्स का होल इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो f इनवर्स f का इनवर्स है, f इनवर्स का दूसरा इनवर्स है f इनवर्स का होल इनवर्स। तो दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्योंकि कोई भी मैपिंग का अगर इनवर्स रहता है वो इनवर्स यूनिक होता है। इसका मतलब यह है, दैट मीन्स एवरी मैपिंग हैज ए यूनिक इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। सो f इनवर्स ऑफ होल इनवर्स इक्वल्स टू f। और सोच लो अगर एग्जाम पे कोई भी कॉम्पोजिशन फंक्शन का इनवर्स हम लोग को ढूंढने के लिए दिया हुआ जाता है तो हम लोग कैसे करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए थ्योरम बट वी नीड नॉट टू बी प्रूव्ड हियर, but just we have to remember this note because we have to prove the some problems. G compose f whole inverse will be equals to f inverse compose g inverse। बैक साइड से इनवर्स होके आता है, ठीक है ना। G compose f whole inverse will be f inverse compose g inverse for FG बाइजेक्टिव मैपिंग। तो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, f z to z डिफाइंड बाई f x इक्वल्स टू 2x एंड g z to z डिफाइंड बाई बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2। हम लोग को सोचना है कि g f का इनवर्स है कि नहीं है। तो g कंपोज f मैंने यहाँ पे निकाला है, दैट इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ। तो बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ है और x कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। तो x का वैल्यू समझ लो 1 है, तो 1 प्लस हाफ क्या होगा, 1.5। 1.5 का बॉक्स क्या होता है, 1 होता है। अगर -1 लेते हैं तो क्या होता है, -1 प्लस हाफ, तो इसका मतलब हो गया माइनस हाफ। तो बॉक्स ऑफ माइनस हाफ क्या होगा, -1 ही होगा। तो यहां से बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ का वैल्यू x ही आ रहा है। तो g कंपोज f इक्वल्स टू i z हो रहा है, ठीक है ना। तो g बिकम्स द लेफ्ट इनवर्स। लेकिन f कंपोज g अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाता है 2 इंटू बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2। अगर x का वैल्यू ऑड आता है तो ये होगा x प्लस 1। समझ लो x का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और बाहर 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाता है। तो 1 का इमेज होगा 2, 3 का इमेज होगा 4, ऐसे करके आता है। तो x अगर ऑड है तो ये होगा x प्लस 1, और अगर x इवन है तो यहां से मिलेगा हम लोग को x। तो f कंपोज g तो iz नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैपिंग मिल रहा है जो इवन और ऑड के ऊपर डिपेंड करके आ रहा है, ठीक है ना। तो g का g is not the right inverse of f but left inverse of f, therefore g is not inverse. We have done a similar type of problem here to find out the inverse of a mapping, and we have checked that whether this inverse exists or not. To check the invertibility we have to simply check the 1-to-1 and on-to। तो पिछले क्लास में मैंने जो 1-to-1 प्रूफ किया हुआ है वहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस से किया हुआ है, और यहाँ पे दूसरा टेक्निक फॉलो किया है मैंने, सेम इमेज इंप्लाई द सेम एलिमेंट, ठीक है। ऐसे करके रैशनल फंक्शन कोई भी रहेगा, अगर ऐसे करके रैशनल फंक्शन कोई भी रहता है तो ये मेथड तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, जहां से आसानी से ये आ जाता है, ठीक है ना। फॉर रैशनल फंक्शन गो फॉर इमेज आर इक्वल देन एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड after some time we have shows that this f is 1-to-1 and f is on-to, hence f is bijective, so f inverse exists। तो f inverse को लिखेंगे कैसे, अच्छे से मेरे बात समझ लो।
एफ इनवर्स होता है क्या, अगर मैपिंग बाइजेक्टिव होता है तो एफ इनवर्स होता है जो सर्जेक्टिव का प्री इमेज मिलता है, ठीक है ना। सर्जेक्टिव में जो प्री इमेज मिलता है y+1/y-1 वही होता है एफ इनवर्स। क्लियर। सो ऐसे एफ इनवर्स को लिखना है। नाउ सम प्रॉब्लम्स आर गिवन हियर, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ, आंसर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड हियर। okay, this is the end of our mapping chapter. Next we will start with the topic of relation, and those who still haven't subscribed this channel, please subscribe.